Ladies and gentlemen, a very good morning to one and all. It gives me immense pleasure to welcome you all to the teacher's graduation ceremony. By this, I would like to say a teacher can inspire hope, ignite the imagination, and instill a love of learning. This has been learned throughout TLA. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Fatima Beg. I would like to say that in this special occasion of teachers' graduation ceremony of TLA, a good teacher is like a candle. It consumes itself of light, the way for others, as TLA gives us. Thank you. To begin this auspicious occasion, I would like to invite Ms. Firdaus Fatima for recitation of Quran ayat to invoke the Almighty. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. From Shaitan the outcast. In the name of Allah the entirely merciful, the specially merciful. Yasin, by the wise Quran, no doubt you have sent on a straight path, sent down by dignified the merciful, so that you may warn a people whose fathers were not one, so they are unaware. Undoubtedly, it has been proved again most of them, so they should not believe. We have put on their necks chains reaching to their chin, so they remain raising up their faces. And we have set a barrier before them and a barrier behind them, and covered them from above. Therefore they cannot see. And it is equal for them whether you warn them or warn them not. They are not to believe. You warn only him who follows admonition and fears the most affectionate without seeing, so giving gladitudes of forgiveness and a respectable reward. Undoubtedly we shall give life to the dead, and we are noting down what they have sent forward and what signs they have left behind. And we have already kept counted everything in a clean book.
तर्जुमा, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। यासीन, हिकमत वाले कुरान की कसम, बेशक तुम सीधी राह भेजे गए हो, इज्जत वाले मेहरबान का उतारा हुआ, ताकि तुम उस कौम को डर सुनाओ जिसके बाप दादा न डराए गए तो वो बेखबर है। बेशक इनमें अक्सर पर बात साबित हो चुकी है तो वो ईमान न लाएंगे। हमने इनकी गर्दनों में तौक कर दिए हैं कि वो थोड़ियों तक है, तो ये अब ऊपर को मुंह उठाए रह गए, और हमने इनके आगे दीवार बना दी है और इनके पीछे एक दीवार, और इन्हें ऊपर से ढांक दिया तो इन्हें कुछ नहीं सूझता, और इन्हें एक सा है कि तुम इन्हें डराओ या ना डराओ वो ईमान न लाएंगे। तुम तो इसी को डर सुनाते हो जो नसीहत पर चले और रहमान से बेदेखे डरे, तो इसे बख्शिश और इज्जत के सवाब की बशारत दो। बेशक हम मुर्दों को जिलाएंगे, और हम लिख रहे हैं जो इन्होंने आगे भेजा है और जो निशानियां पीछे छोड़ गए, और हर चीज हमने गिन रखी है एक बताने वाली किताब में। जज़ाकल्लाह खैर। This, firstly, I would like to welcome Mr. Wahidat Khan to please come on the stage, who is an President of Teaching Learning Academy, to please come on the stage and have a seat, sir. ग्रेजुएशन डे के मैं आप सबका यहाँ पर खैर मुक़द्दम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग लर्निंग एकेडमी पिछले साढ़े तीन साल से कंटिन्यूसली डेडिकेशन के साथ एक अहम फरीज़े को अंजाम दे रही है। इस मुख्तसर से कलमात के साथ मैं अपनी जगह लेता हूँ। Now I would like to call Mr. Mirza Khalid Beg, sir, to please deliver your address. मोहतरम वहीदात खान साहब चेयरमैन TLA, अब्दुल मुख्तदिर साहब सेक्रेटरी, जनाब फरीद साहब, जनाब सईद तनवीर अहमद साहब और अब्दुल जब्बार सिद्दीकी साहब, और मोहतरम बुजुर्ग और TLA के ट्रेनीस और हाजरीन, TLA की परफॉर्मेंस इस दौरान बहुत उम्दा रही। पहली बैच से मुझे ये फ़ख्र हासिल रहा कि मैं TLA की तमाम बैचेस की कुछ ट्रेनिंग का काम कर सकूं, और 2012 से लेकर अब तक अनथक मेहनत और जिद्दोजहद के बाद आज TLA ने जो मकाम हासिल किया है, इसके ट्रेनिस ने जो अपने अपने स्कूलों में बल्कि अपने अपने घरों में इन्होंने जो तब्दीली दूसरों से महसूस करवाई वो काबिल ज़िक्र है। मैं यहाँ पर कुछ ख्यालात का इजहार करना चाहता हूँ, वो ये है कि बात शुरू से इब्तिदा या अंजाम किससे आगाज़ करूँ में समझ में नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ एक बड़ी बिल्डिंग होती है जिसका नाम यूनिवर्सिटी होता है, वहाँ पर हाईएस्ट डिग्री दी जाती है कागज़ पर, लेकिन अगर इसको समझना चाहें तो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। यूनिवर्सिटी से मुराद क्या होना चाहिए? यूनिवर्सिटी से मुराद कुछ और होना चाहिए, वो नहीं जो आज हो रहा है। फिर हमको इंसान की पैदाइश बर्थ से शुरू करना पड़ता है कि इंसान जब छोटा सा नन्हा सा वजूद लेकर इस दुनिया में आता है तो यूनिवर्स से बाहर से यूनिवर्स के अंदर आता है। ही इज अ न्यू कमर इन दिस यूनिवर्स। अब उसका वास्ता यूनिवर्स से पड़ता है, कायनात से पड़ता है, और वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसको यूनिवर्स से इंटीग्रेट होने के राज मालूम होने चाहिए ताकि वो यहाँ पर खुशी खुशी रह सके, अमन और आफियत से रह सके, प्रॉस्पेरिटी और पीसफुल तरीके से रह सके। और ये डिस्कवरी खुद उस इंसान को करना पड़ता है जो वजूद में आया है। तो क्या हमारी यूनिवर्सिटियां इस यूनिवर्स से हमको इंटीग्रेट करती हैं? क्या इस कायनात से हमको हम आहंग करती है? क्या इस काबिल बनाती है कि हम कायनात से गुफ्तगू कर सकें और कायनात से उसके राज हासिल कर सकें जो कि खुशी के राज हैं?
जो कि सुकून के राज हैं, जो कि अमन के राज हैं। इंसान को वो राज नहीं मालूम होने की वजह से, उसकी डिस्कवरी इनकम्प्लीट होने की वजह से इंसान कंफ्यूज हो जाता है, और एक कंफ्यूज्ड इंसान इस दुनिया में खुशी से महरूम रहता है। उसे यह नहीं मालूम होता है कि मैं क्यों आया हूं, मुझे क्या करना है, ये सारी चीजें मेरे तरफ हैं तो क्या है। वो न्यू कमर जिसे हम बच्चा कहते हैं, उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि मैं इस कायनात के राज दरियाफ्त करूं, लेकिन हमारा सिस्टम उस बच्चे की इस क्यूरियोसिटी को खत्म कर देता है और उसे एक लगे बंधी चीजें दे देता है जो उसको अपनी जरूरतों की तकमील के तो काबिल बना देता है, लेकिन उसको परफेक्शन, सेल्फ परफेक्शन तक पहुंचने से महरूम रखता है। कायनात की हर चीज बात करती है, कायनात की हर शय बोलती है, अपने राज देने के लिए बेचैन है, लेकिन क्या वो फर्द जो इस कायनात में आया है, क्या कायनात से गुफ्तगू करने, कन्वर्सेशन करने के काबिल है? और एक साइलेंट कन्वर्सेशन जिसे हम गौर व फिक्र कहते हैं, क्या हमारा निज़ाम तालीम उसको गौर व फिक्र के काबिल बनाता है या मशीन बना देता है, रोबोट बना देता है? तो टीएलए में ये बहुत अच्छा मौका मिला इन ट्रेनीज को कि वो तालीम का हकीकी मकसद क्या है वो जाने और उन हीरो को तराशें जो उन्हें छोटे छोटे बच्चों की शक्ल में मिलते हैं, और उन्हें इस काबिल बनाएं कि वो इस कायनात से हमांग हो सके, इस यूनिवर्स से इंटीग्रेट हो सके और उससे राज हासिल कर सके, जिससे वो खुद एक कॉन्टेंटमेंट तक पहुंच सके और दूसरे इंसानों को जो है कॉन्टेंटेड करने के काबिल बने। इस वक्त दुनिया का जो हाल है, बाहर उससे बुरा हाल इंसान के अंदर, खुद उसके अंदर की कश्मकश का हाल है, सिर्फ इस वजह से कि वो कायनात के राज नहीं समझ सका। नॉलेज उसको ये राज नहीं देती है, ये राज उसको गौर व फिक्र देता है, तदब्बुर देता है, कॉन्टेम्पलेशन देता है, मेडिटेशन देता है, और ये खामोश अमल है। तो एजुकेशन के नाम पर जितना शोर हो रहा है, असल में उतने बड़े शोर की जरूरत नहीं है, लेकिन एक छोटे से हॉल में, हैदराबाद शहर के एक महल्ले के, एक स्कूल के एक छोटे से गोशे में टीएलए की टीम जो काम अंजाम दे रही है, वो इस लिहाज से बहुत काबिल कदर है, अप्रिशिएबल है कि इसने आज तक 500 ऐसे अफराद तैयार किए जो जानते हैं कि बच्चों को कैसे हैंडल करें, जो जानते हैं कि कायनात में जो न्यू कमर्स हैं, जो रफ डायमंड्स हैं, उनको कैसा केयरफुल्ली कट कर सके और उन्हें कीमती बनाए। अपने इन ख्यालात के साथ मैं अपनी जगह लेता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। Now, I would like to say a few words about teaching. Teaching is the act of sharing the knowledge we have been given by others with hope that someday, in some way, we are going to pass it down again. Thank you. Call Honorable Syed Masood, Advocate, to please deliver an address. Chairman, sir, of this function, Chairman of the Academy, the other dignitaries, and the honorable persons associated with this academy. This is the first time I got this honorable opportunity to attend to this function. Therefore, as a matter of fact, I do not know the real and actual. Therefore, I not being aware of personally the functioning, the commencement, the details, the courses
which are being given to the students, the teachers who will be in turn teaching the students. Therefore, directly I may not be able to. Rather, I am not competent enough to speak about these children, these students who are getting themselves to become the teachers. But I feel, and very honestly feel, that a teacher is a very important person in the society, because it is the teacher who lays down the foundation respective fields. Let a student may become the doctor or an engineer or an advocate or a research scholar or a lecturer or a professor or a builder. He may go to in any of the fields, but the basic thing which starts from the fact that it is his learning, his building up the personality, and the efforts of the teacher and the efforts of the students who make a particular person as successful. So therefore, in my considered view, I very honestly feel that the teachers who are going to start their career as a person imparting education light to their students are very, very important. And I have also got the feeling that among all the professions, it is the teachers who are most respected. Dozens and hundreds and thousands of students come, spend their time, learn from the teacher, go away to further education to different fields, and whenever incidentally a teacher happen to meet such a person, the past student, he may not be aware of that particular student, but in view of the importance, the dedication, the pains taken by the student towards building a particular student, the student remembers him, and that student always with respect will definitely say, Assalamu alaikum sir, you are a student in so and so place. So therefore, my saying that teachers are important, and our today's function is to felicitate the students who have completed their course as teachers. I wish them all the best. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उन्हें कामयाब टीचर बनाए और उनके तरफ से वो जिस चीज़ को पढ़ाते हैं वो सब भी कामयाब स्टूडेंट्स बने. Now therefore the purpose for which a teacher performs his duty is to build their students in their education, in their learning, to be a teacher is required to handle the students, come over their weaknesses. There may be different
standards of the students who are present in the class. Somebody are intelligent, the level of intelligence may be less in others, but the teacher will have to understand the understanding of the different students, go up to that level and make, if a teacher understands the students and with the burning zeal to make each and every student understand the subject which is being taught to him. Every teacher which takes up a different subject and go to the different classes, if they make up a mind, make up a determination and make up a zeal to the effect that they will make the students, every boy, every girl of it, a successful tomorrow's individual, then only we can say that that particular teacher is successful and that particular teacher is imparting education, learning and discharging its duty properly. The teachers who are intending to continue in this profession, to please have in mind with the determination, with the absolute resolution that you will pay attention to each and every student, go up to the standard of understanding of that particular person, that particular student, and make him understand. And if that is made, I'll be rather without any hesitation will be saying that the teacher is earning sawab-e-jariya by making a raw student into a learned man in future and a perfect human being with knowledge, with information, and ultimately a perfect Muslim. These are the very basic requirements for a teacher. Incidentally, I have got an opportunity of able to speak to you. I take this opportunity of sharing my thought with you to the effect that please make determination that आप पेशे अंबिया से जुड़े हुए हैं। अंबिया को भेजा गया था इंसानों की तरबियत के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए, तो टीचर्स को भी स्कूल में, क्लास में इसलिए भेजा जाता है कि वो अपनी मालूमात, अपना इल्म तुलबा में बांटें, तकसीम करें, तुलबा को तरक्की दें, ज़हनी एतबार से तरक्की दें और मॉरल वैल्यूज सिखाएं, ह्यूमन बिहेवियर सिखाएं और उनको अच्छा और मुकम्मल इंसान बनाने की कोशिश करें। अगर ये सब टीचर्स ये इरादा बिल्कुल पक्का करते हैं कि हम जब प्रोफेशन स्टार्ट करेंगे तो इस ज़ील, इंटेंशन, इरादा, क़ुव्वत और रेजोल्यूशन के साथ अपनी हर क्लास में रोजाना हर घंटे में जो पीरियड होता है, जहां हम पढ़ाई के लिए जाएंगे, वहां हम अपने स्टूडेंट्स को सही इंसान, अक्लमंद इंसान,
सोच समझ रखने वाला इंसान, कल के दिन तरक्की करने वाला इंसान, कारआमद इंसान बनाने की कोशिश करेंगे तो न सिर्फ अपना काम मुकम्मल तौर पे आप कमा खूब तौर पे करेंगे, बल्कि आप सवाब जारिया भी कमाएंगे, जो न सिर्फ मॉनेटरी सिलसिले में आपको फायदा देगा, बल्कि आपका कि ये कोशिशें इंसान की, एक इंडिविजुअल की बनाने में, उसके ख़ानदान को अपलिफ्ट करने के सिलसिले में, उसके ख़ानदान को आगे बढ़ाने के सिलसिले में, जैसा कि कहा जाता है कि today's student is future of the country. What exactly I am also aspiring and requesting again and again and again to please give a very serious thought whenever you find time, and remember my words, and under the guidelines of my words, please determine your role to be imparted to your students, and see that each and every student of yours improves, progress, and no student is left untouched, left its place without any growth, without any progress, without understanding anything. In my opinion, if we do not try to improve, make up, all the students will be rather failing in efforts. So, हर एक स्टूडेंट को समझें, उसकी काबिलियत अहलियत को समझें, उसकी काबिलियत अहलियत के लिहाज से उसको समझदार बनाएं, कामयाब तालीम करें। कामयाबी महज इम्तिहान में कामयाब हो जाने या इम्तिहान में अच्छा रैंक लाने या 99% मार्क्स लाने का नाम मेरी नज़र में नहीं है। कामयाब स्टूडेंट वो है जो न सिर्फ अपने मज़ामीन में, अपने सब्जेक्ट में अच्छा होता है, बल्कि अच्छा इंसान होता है, अच्छा बेटा होता है, अच्छा भाई होता है, अच्छा शागिर होता है, और अच्छा शहरी होता है, और अच्छा मुसलमान होता है। तो ये बनाने की आप कोशिश कीजिए। मैं कोई आपको हुक्म देने या बड़े मुकाम से आपको किसी बात को कहने के लिए आपके सामने हाजिर नहीं हूं। मैं वेरी अर्नेस्टली, वेरी हम्बली एंड रिपीटेडली ये कहने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूं कि अब आप स्टूडेंट्स में जाने वाले हैं, अपना काम शुरू करने वाले हैं। ये काम शुरू करने से पहले सोचिए, गौर कीजिए कि आपको आपका काम कैसा करना है, अहद कीजिए और उस अहद की पाबंदी हमेशा हमेशा के लिए कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तभी मेरी नज़र में, दुनिया की नज़र में, क्योंकि ये वाक़या है कि यही बात सच्ची है, आप कामयाब टीचर हैं, आप कामयाब टीचर हैं तो आपका हर स्टूडेंट कामयाब होगा और आप कामयाब हैं, स्टूडेंट्स कामयाब है तो फिर ख़ानदान भी कामयाब है, महिला भी कामयाब है, शहर भी कामयाब है, मुल्क भी कामयाब है। और इस तरीके से आप मुल्क का मुस्तकबिल जो बना रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। टीचर बहुत बड़ा आदमी होता है। अबुल कलाम
एपीजे अब्दुल कलाम भी स्टूडेंट थे। एपीजे अब्दुल कलाम अगरचे के बड़े आदमी थे, मगर टीचर के सामने तो छोटे आदमी थे अपने। ऐसे ही किसी का नाम ले लीजिए, क्या ये तमाम लोग आज जो बड़े हैं, जो आपके सामने बात कर रहे हैं, ये सब खुद से बड़े नहीं हो गए, अपने टीचर की मेहनत की वजह से बड़े हुए हैं। इसलिए मैं आपको तमाम दुआओं के साथ, इस ख्वाहिश के साथ अपनी जगह लेता हूँ कि अल्लाह आपको कामयाब करे, आपके दीन कौम को कामयाब करे, मुसलमानों को कामयाब करे, नेशन को कामयाब करे। खुदा हाफिज। मसूद अली, एडवोकेट, मेंबर ऑफ मुस्लिम एजुकेशनल बोर्ड, स्टैंडर्ड हाई स्कूल के आप जो ना मेंबर हैं, जज़ाकल्लाह। वी थिंक फॉर दिस वेरी गोल्डन वर्ड्स जिनके उन्होंने बताया है। अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। Invite chief guest Mr. Sayyid Tanveer Ahmed, who is an executive director of Danish Stars International Monterey School, for addressing by his intellectual words. अला सय्यदुल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तआला अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम वहीद खान साहब, प्रेसिडेंट TLA, मोहतरम आली जनाब इंजीनियर फेलिसिटेशन प्रोग्राम के प्रेसिडेंट, दीगर गेस्ट्स ऑफ ऑनर सिटिंग ऑन द डाइस, और जिन्होंने एक बड़ा काम करने का अज़्म किया है, ऐसी मेरी प्यारी बहनें और बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले एक बात की तरफ रिमाइंड करवाना चाह रहा हूं आपको। वो ये कि मैंने जब फरीद भाई से आपके करिकुलम के बारे में दरियाफ्त किया कि हाउ इट हैज़ बीन डिज़ाइंड, तो उसमें एक बात उन्होंने कहा कि हमारे पास क्लासरूम मैनेज करने का भी एक सब्जेक्ट है। तो आई वंडर हाउ बेस्ट यू कैन मैनेज दिस क्लास। आप में से कोई एक मॉनिटर है तो वो खड़े हो जाए और क्लास को मॉनिटर करे, क्योंकि आई कुड सी सम ऑफ आवर सिस्टर्स आर स्टैंडिंग एंड ओके, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो बैठ जाइए, क्योंकि इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर मी। जी, ओह सॉरी, दे आर ऑन, ओके, नो इशू, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में ड्यूटी अब खत्म हो चुकी है, तमाम गेस्ट आ चुके हैं। हाँ, बैठ जाए तो बेहतर है। ओके, यू कैन परफॉर्म योर ड्यूटी बाय सिटिंग। ऐसा लग रहा है कि आप लोग सर्टिफिकेट लेने के ज्यादा मूड में हैं और सुनने के कम मूड में हैं। ओके, तो मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा, और जब भी मैं देखूंगा कि आप में बेचैनी शुरू हो गई है एंड यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स मी, तो चिट्ठी भेजने की जरूरत नहीं, मैं बंद कर दूंगा। दैट मच श्योरिटी फ्रॉम माई साइड। ओके, मैं सबसे पहले आप तमाम को इस बात की मुबारकबाद देना चाहता हूं, जैसा कि एडवोकेट साहब ने कहा कि आप एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन में एंटर होने के लिए एक सर्टिफिकेट कोर्स को कंप्लीट किया है, सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। कुछ देर में आपको शायद सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, मैं इस पर मुबारकबाद देता हूं, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगी, ये सर्टिफिकेट डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी कल क़यामत में सीधे हाथ में सर्टिफिकेट लेने के लिए। और वो सर्टिफिकेट जो अल्लाह ताला सीधे हाथ में आपको और मुझे देगा, वो ज्यादा मैटर करती है, वो ज्यादा वैल्यूएबल है। और सर्टनली
आप जो सर्टिफिकेट लेंगे, जिसकी ट्रेनिंग आपने ली, बाय वर्च्यू ऑफ दिस ट्रेनिंग इंशाअल्लाह यू वुड बी गेटिंग द सर्टिफिकेट इन योर राइट हैंड इन द मैदान हशर इन द हियर आफ्टर। ठीक है। टीचर्स के बारे में जब भी गुफ्तगू होती है तो मैंने ये देखा है कि आमतौर पर टीचरों को बड़ा लान तान किया जाता है। कहा जाता है कि टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रही है, टीचर ऐसे हैं, टीचर वैसे हैं। और एक राज की बात बताऊं, आप जब स्कूल्स ज्वाइन करेंगे, टीचर बन जाएंगे फुल फ्लेज्ड, और बास तो टीचर होंगे, वो ये एक्सपीरियंस करते हैं कि पीटीए टीचिंग मीटिंग जो होती है, पेरेंट टीचर मीटिंग, कितने लोग जानते हैं पेरेंट टीचर मीटिंग? ओ माशाल्लाह, बहुत ज्यादा जानते हैं, यानी आप लोग सुन रहे हैं। तो पेरेंट टीचर मीटिंग में होता यह है, जो फर्स्ट रैंक बच्चा होता है, सेकंड रैंक बच्चा है, थर्ड रैंक बच्चा होता है या बच्ची होती है, उसके मां से, बाप तो जाता कम है पेरेंट मीटिंग में, मां से मुस्कुराकर मिलती हैं और कहती हैं कि आपका बच्चा या बच्ची अच्छा पढ़ रहा है। आपका क्या एटीट्यूड होता है आप जानते हैं। मेरे 3 बच्चे हैं और एक बीवी है, और कभी वो 3 बच्चों के पेरेंट मीटिंग में गई नहीं आज तक। क्यों नहीं गई? ऑब्वियस कि मेरे बच्चे कभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक नहीं आए हैं। और वो ये कहती है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक आता नहीं, और मैं जाती हूं तो टीचर हमेशा, एक बार गई थी तो डांट के भेजी कि आप बच्चे को होमवर्क नहीं कराते, आप बच्चे को फला नहीं कराते, आप बच्चों को फला नहीं कराते, जाइए। जा टीवी पे रहता है, दिन भर फोन पे रहता है, पढ़ता नहीं है, नाराज होती है 2-3 दिन। तो पेरेंट टीचर मीटिंग जब भी आती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक के बच्चों के अलावा सारे बच्चों की माएं बड़े टेंशन में और स्ट्रेस में रहती हैं कि पता नहीं आज टीचर क्या बोलेगी। इसका इंपैक्ट जो पड़ता है घर में वो ये कि आहिस्ता आहिस्ता मां टीचर के ताल्लुक से एक एंटीपैथी डेवलप कर लेती है कि तेरी टीचर खराब, मेरा बच्चा पढ़ रहा नहीं इसलिए कि इसकी टीचर अच्छी नहीं है, मेरे भाई का बच्चा पढ़ता है उसकी टीचर अच्छी है, मेरी बहन का बच्चा पढ़ रहा है उसकी टीचर अच्छी है, मैं खराब, अब मेरे बच्चे की टीचर खराब। यस या नो? यस, माशाल्लाह, सुन रहे हैं आप लोग। है एजुकेशन को इंपार्ट करने का, उसके लिए आज हम एक विजन तय करके यहां से उठे। मेरा पहला लेसन, पहला पॉइंट आज के इस प्रोग्राम के लिए ये कि हम और आप एजुकेशन सेक्टर में कुछ सर्विस करना चाह रहे हैं, खिदमत करना चाह रहे हैं, तो हमारा विजन के लिए इनको तय करें। मैनेजमेंट एग्री नहीं करता तो आप अपने लिए ये विजन क्या हासिल करना चाहते हैं। लेट अस डिजाइन अवर विजन। सो कैन एनीबडी हेल्प मी? व्हाट शुड बी द विजन? हमारा विजन क्या होना चाहिए? मार्क्स नहीं होना चाहिए, हमने एस्टेब्लिश कर दिया। पैसा कमाना नहीं चाहिए, ये भी हमने रिजेक्ट कर दिया। तो फिर क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन होना चाहिए, राइट? जी, discipline, excellence in education, again it is related with marks, skill, knowledge, right? Self confidence, right?
फोकस, वंडरफुल, कितनी अच्छी ट्रेनिंग दी गई है आपको, लॉट ऑफ आंसर्स, वैरायटी ऑफ आंसर्स, आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू। लेकिन बहुत क्लैरिटी के साथ हमको उठना है यहां से। हमारा विजन ये होना चाहिए कि हम ऐसा काम करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सीधे हाथ में देगा। और वो ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, नंबर 1 कि बच्चों को आखिरत की कामयाबी से हमकिनार कराएं। आप वो शऊर दें, बच्चों को इस तरह फैसिलिटेट करें कि वो आखिरत में कामयाब हो जाए। की कामयाबी, दोनों कामयाबियों के बारे में हमको दुआ का सलीका सिखाया है। तो हम बच्चों को दोनों जहानों की कामयाबी के लिए हम फैसिलिटेट करेंगे। दुनिया की कामयाबी बच्चा इस तरह हासिल करे कि इस स्ट्रगल में रहते हुए वो आखिरत की भी कामयाबी हासिल कर ले। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बच्चा सिर्फ आखिरत की कामयाबी हासिल करे, हम बच्चे को इस दुनिया के लिए भी तैयार करेंगे। इस दुनिया में कामयाबी के लिए उसे हम ऐसा शख्स बनाएंगे कि वो दुनिया की खुशियां लूट सके, रीजनेबल अंदाज में लूट सके, मिडिल पाथ को इख्तियार करे, दूसरों के हुकूक को ना मारे, दूसरों के जिंदगी का ख्याल रखे, उसमें इंपैथी हो, उसमें शेयरिंग और केयरिंग का जज्बा हो। ये सारी चीजें आप बच्चे में पैदा करेंगे और उसको एक सक्सेसफुल पर्सन इन दुनिया में बनाएंगे। आखिरत में भी सक्सेसफुल पर्सन बनाने के लिए उसको यहां बेहतरीन सिटीजन बनाना जरूरी है। अगर वो बेहतरीन सिटीजन बनेगा, वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के काबिल बनेगा, तो वो आखिरत में भी अल्लाह का अच्छा बंदा बनेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव आपका मेरा होना चाहिए। अगर मियरली मैं उसको एक डॉक्टर बनाना चाह रहा हूं, लेकिन डॉक्टर इरोडेड वैल्यूज के साथ है, उसके अंदर कोई अखलाक नहीं है, वो पेशेंट को जानवरों की तरह ट्रीट करता है, तो वो फिर डॉक्टर ऐसा डॉक्टर नहीं होगा जिसको आखिरत की फलाह व कामयाबी मिलेगी। फॉर दैट मैटर किसी भी प्रोफेशन में चले जाइए, अगर वो अपने उस प्रोफेशन मोरालिटी के साथ पूरा नहीं कर रहा है, तो फिर वो आखिरत में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। तो ये शऊर आपको बच्चों को बचपन से ही पैदा करना है और टीचर इस काम को बेहतर अंदाज में कर सकती है। दोनों ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए आजकल एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन बहुत डिस्कशन में है और बहुत उस पर गुफ्तगू हो रही है। उस सिस्टम का नाम क्या है? कैन एनीबडी टेल मी? सॉरी जी, CCE। oh wonderful, continuous comprehensive evaluation, right? This is a kind of evaluation, right? लेकिन एक एजुकेशन सिस्टम है जिसका आजकल जी टेक्नोलॉजिकल इनेबल्ड एजुकेशन, ठीक है? आपने जो कहा यस, तो ये दोनों जवाब अपनी हद तक दुरुस्त हैं, लेकिन एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन का काफी चर्चा है जिसको हम होलिस्टिक एजुकेशन कहते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन? किसी ने सुना है? होलिस्टिक एजुकेशन का मतलब क्या है? सॉरी, मॉडर्न एंड रिलीजियस एजुकेशन। ओके, पार्शियली इट इज करेक्ट। होलिस्टिक मतलब ये होली से होलिस्टिक समझते हैं हमारे बच्चे या लड़कियां। ये उस, हाँ इस्लामिक कहा आपने, आजकल इस्लामिक का बड़ा चर्चा है कि लफ्ज इस्लामिक स्कूल लगा देंगे तो पैसे ज्यादा मिल रहा है आजकल, ठीक है? इट हैज बिकम ए, क्या कहना चाहिए, बज़वर्ड काइंड ऑफ थिंग एंड एडवर्टाइजमेंट का टैग बन गया है। होलिस्टिक एजुकेशन इज, क्या कहते हैं इसको,
होलिस्टिक एजुकेशन इज अ कंप्लीट एजुकेशन। किसी ने कहा कि होलिस्टिक एजुकेशन क्या है, एक सिंपल टर्म्स में डिफाइन करिए। उसको इस तरह डिफाइन किया जा सकता है कि इट इज एजुकेशन ऑफ हार्ट एंड माइंड। एजुकेशन ऑफ हार्ट एंड माइंड इज होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन। आज जितनी एजुकेशन हो रही है उसमें आप और हम बच्चों को फैक्ट सिखाते हैं, राइट? वी टीच फैक्ट्स। आप ये सिखाते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बट व्हाट इज लॉजिक बिहाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड प्लस 2ab? क्या आप बता सकते हैं बच्चे को? नहीं बताते हैं आप। कैसी एजुकेशन है ये? मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। टीचर बोलती है और बच्चा सुनता है। टीचर डिलीवर करती है, बच्चा रिसीव करता है। एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं जिनका नाम है पॉलो फरेरे, ब्राजीलियन है ये। इन्होंने कहा कि आज जो हम एजुकेशन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं ये एजुकेशन सिस्टम ऑफ अप्रेस्ड है। अप्रेस्ड मतलब पसमानदा लोग, पसमानदा लोगों का एजुकेशन सिस्टम है। इस एजुकेशन सिस्टम के जरिए हम कोई बड़ी चीज नहीं पैदा कर सकते हैं। आप बहैसियत टीचर आपको सैलरी मिल सकती है, मैं स्कूल चलाने वाला हूं तो मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं, प्रॉफिट मिल सकती है, लेकिन इस सोसाइटी को मैं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सक रहा हूं, ह्यूमैनिटी को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता हूं। इसलिए करंट सिस्टम इज सिस्टम ऑफ एजुकेशन ऑफ अप्रेस्ड, यानी टीचर पढ़ाती है, बच्चा सुनता है। सुन के क्या करता है बच्चा? क्या करता है बोलिए? बैक बेंचर्स रिटेन करता है। रिटेन करके कब रिप्रोड्यूस करता है? ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में तीन चीजें होती हैं। नंबर 1 लिसनिंग, नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग, नंबर 3 रिटेनिंग, नंबर 3 रिप्रोडक्शन। अच्छा, अगर अंडरस्टैंडिंग को निकाल दें, मोस्ट ऑफ द टाइम अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती। जैसा कि मैंने पूछा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, सो विदाउट अंडरस्टैंडिंग हम उसको मेमोराइज कर लेते हैं। तो 90% केसेस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है। क्या हो रहा है? मेमोराइजेशन एंड रिप्रोडक्शन एट द टाइम ऑफ एजुकेशन। हमारे एक दोस्त ने कहा कि वी आर नॉट प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स, रादर वी आर प्रिपेयरिंग पेन ड्राइव्स। पेन ड्राइव से क्या काम करते हैं आप? स्टोरिंग, रिप्रोडक्शन, यही होता है ना। तो वेदर वी आर प्रिपेयरिंग पेन ड्राइव और स्टूडेंट्स, पेन ड्राइव्स। तो चाइना सबसे अच्छा है। चाइना इज प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ पेन ड्राइव्स। अब आप यहां जाने के बाद पेन ड्राइव्स पैदा करेंगे या लर्नेड पीपल पैदा करेंगे? लर्नेड पीपल पैदा करेंगे। वंडरफुल। कैसा करेंगे? by following holistic approach of education, right? And holistic approach of education is education of mind, education of heart. Okay, you make them to understand. Immersion in knowledge. There is a concept. आप बच्चे को नॉलेज में डुबा दें। टीचिंग फैक्ट इज डिफरेंट, टीचिंग नॉलेज इज डिफरेंट। वी ऑल आर teaching facts, we are not teaching knowledge. So from henceforth मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप नॉलेज को इम्पार्ट करें। नॉलेज को इम्पार्ट करने के लिए टीचर्स में जो क्वालिटीज चाहिए उसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैंने फरीद भाई से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को पेडागोजी भी सिखाई गई। व्हाट डू यू मीन बाय पेडागोजी?
Study of mind. Pedagogy is what? Study of mind and what? Personality, right? Methods of teaching, right? This is most appropriate. How you will be delivering, how you will be engaging students, how you would be making a student a passive listener. Is it right? Oh. Active listener, right. Okay. मैंने कहा पैसिव लिसनर, आप सबने कहा यस. ओके, सो इट इज नॉट, पेडागोजी इज नॉट ऑल अबाउट मेकिंग अ स्टूडेंट पैसिव लिसनर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 90% टाइम आप बच्चे को पैसिव लिसनर बनाते हैं. आप बोलते हैं बच्चा सुनता है, आप बोलते हैं बच्चा मेमोराइज करता है. इसको कहते हैं पैसिव लिसनर. आप उसको एक्टिवली इन्वॉल्व करें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करें. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टाइल ऑफ लर्निंग. आपने पढ़ा ना? व्हाट आर दोस 3 टाइप्स ऑफ? ऑडियो लर्नर, वीडियो में बात बताऊं. ये जो 3 स्टाइल्स ऑफ लर्निंग है, इज दिस मिथ और रियलिटी? इट्स रियलिटी. वंडरफुल. बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट ब्रिंग माई बैग. मैं किताब पढ़ रहा हूं जिसमें कहा गया कि ये जो चलेंगे, सर तो एक पढ़ा है और ये साहब कोई आए आधे घंटे के लेक्चर में अपने कहा कि जो कुछ पढ़ा आपने बेकार पढ़ा. नो, बिल्कुल सही है, लेकिन अब ये थ्योरी डिस्प्रूव हो चुकी है कि सिर्फ 3 स्टाइल ऑफ लर्निंग होते हैं. ऐसा नहीं है. बच्चा जो है कोई एक स्टाइल से नहीं पढ़ता, बल्कि अगर आप तीनों को इंटीग्रेट करेंगे तो फिर ये प्रोसेस एक्टिव हो जाएगा. तो आप जब यहां से निकलेंगे तो सिर्फ आप डिलीवर करने वाले ना बने, सिर्फ टेल वाले ना बने, बल्कि बच्चों को इंगेज करने वाले बने. बच्चे को इंगेज करेंगे तो बच्चे का लर्निंग प्रोसेस बढ़ेगा, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और बच्चे की जो कॉग्निटिव स्किल होती है वो बढ़ेगी. कॉग्निटिव स्किल आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा? कॉग्निटिव स्किल का मतलब क्या है? फंडामेंटल स्किल्स, लॉजिकल थिंकिंग, वंडरफुल. आपने कहानी सुनी है क्या? नहीं सुनी? अच्छा, सुनी है या टीवी में देखी है? क्योंकि देख रहे ज्यादा है आजकल, सुन रहे कम है. जी, हमारा दौर था हमको नानी कहानी सुनाती थी. आज तो घर में पहले नानी होती नहीं, अगर रही भी तो वो मसरूफ रहती है टीवी देखने में, वो कहानी नहीं सुनाती नानी. ओके, तो आप में से कितनों ने कौवे की कहानी सुनी है? अरे कौन सा भी रहने दीजिए फिल्म. आपने कहा प्यासा. अब इतने कम हाथ उठे हैं कि वो ताज्जुब हो रहा है कि कौवे की कहानी भी चले गई हैदराबाद से. कौवे की कहानी सारों ने सुनी है ना? यस, वेरी गुड. तो कौवे की जब कहानी बोली जाती है तो हम क्या करते हैं? कहानी पढ़ा देते हैं. कौवा प्यासा था, जग में थोड़ा पानी था, कौवा डाला कंकर, पानी आया ऊपर, कौवा पिया पानी, हो गई मेरी कहानी. देखिए, ये एक अंदाज है, आपने कह दिया है ना. परसों मैं एक जगह कह रहा था एक किताब में कि कहानियों की किताब में होता क्या है, आखिर में मॉरल ऑफ द स्टोरी. अब मैं एक किताब बना रहा हूं कहानियों की, जो अभी प्रेस में पब्लिश हो रही है, तो मैंने उसमें से मॉरल ऑफ द स्टोरी निकाल दिया है. क्यों निकाल दिया? कि मॉरल ऑफ द स्टोरी किल्स द मॉरल ऑफ स्टोरी. मॉरल ऑफ द स्टोरी, वो जो लिखा जाता है ना, वही प्रॉब्लम करता है. इसलिए कि बच्चा कहानी के पढ़ने के जरिए, कहानी क्यों पढ़ाई जाती है प्राइमरी स्कूल्स में?
Because children love the story, wonderful. लेकिन एक राज की बात बताऊं मैं, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं इंडिया के, डॉक्टर रैंक नजीर अहमद साहब, हमारे दोस्त हैं, हमारे स्कूल के एडवाइजर भी हैं। वो अपोलो जो मिशन थे ना, चांद पर जो इंसान गया था, तो अपोलो प्रोजेक्ट में चांद पर जो गाड़ी लैंड हुई थी, जो व्हीकल थी, लूनार लैंड रोवर, उस गाड़ी को डिजाइन करने वाले डॉक्टर रैंक नजीर अहमद, बड़ी पर्सनालिटी, नासा के साइंटिस्ट वो, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों कहा कि मेरे पोतरे को स्कूल छोड़ने के लिए मैं गया, और जैसा यहाँ हमारे पास भी पेरेंट बच्चों को छोड़ने के लिए आते हैं, और जिन पेरेंट में ज़रा ज़्यादा दिलचस्पी होती है और क्यूरियोसिटी होती है, वो टीचरों को आके पूछते हैं कि हमारा बच्चा कैसा पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, पूछते नहीं पूछते? यस। तो वो दादा जान भी जाकर पूछने लगे कि आप हमारे बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चा है, 7 इयर्स। टीचर ने कही कि आपके बच्चे को 3 महीने से हमें कहानी बोल रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा, ये क्या बात हुई? साइंटिस्ट का पोतरा है और 3 महीने से सिर्फ कहानी बोले जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि नो, वी आर डेवलपिंग कॉग्निटिव स्किल इन द चिल्ड्रन। बच्चों में हम कॉग्निटिव स्किल डेवलप कर रहे हैं, और 3 महीने कहानी बोल रहा है। अगर आपके और मेरे स्कूल में 3 महीने कहानी बोली गई तो पेरेंट क्या कहेंगे? स्कूल बेकार, टीचर बेकार। लेकिन आप देखिए जो एडवांस सिस्टम है, वहां पर 3 महीने इनिशियल स्टेज के सिर्फ बच्चे में कॉग्निटिव प्रोसेस डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। यह है एक्टिव प्रोसेस, यानी बच्चे को कंप्रहेंशन सिखाया जा रहा है, बच्चे में वोकैबुलरी सिखाई जा रही है। जितनी वोकैबुलरी होगी, जितने अल्फाज होंगे, उतना नॉलेज आप ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। अंग्रेजी के कितने अल्फाज हैं? नहीं, सॉरी, अंग्रेजी के वर्ड्स कितने हैं? लेटेस्ट, नॉट लेटेस्ट, वर्ड्स so many, माशाल्लाह, what a wonderful answer. ओके कितने वर्ड्स है? बहुत सारे हैं। जैसा कहा जाता ना, हिंदुस्तान पे अगर मजमून लिखे आया तो हिंदुस्तान बड़ा अच्छा मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बहुत बड़ा मुल्क है। कितने वर्ड्स हैं अप्रोक्सीमेटली? अच्छा चलिए, उर्दू के कितने हैं? एनी आइडिया? अच्छा, वर्ड फ्रॉम वी विल गेट सम स्टैटिस्टिक्स अबाउट वर्ड्स। क्या किताब कोई है? किसी ने कहा हल्के से अल्फाज में, जरा कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। डिक्शनरी। किसने कहा? अच्छा माशाल्लाह, नहीं, इनाम दूंगा भाई, घबराइए मत। तो डिक्शनरी में आपको वर्ड्स मिलेंगे, और डिक्शनरी के ऊपर लिखा होता है कितने वर्ड्स होते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डिक्शनरी? ओके, टीचर के पास जरूरी है कि वो डिक्शनरी रखे। आज जाने के बाद सबसे पहला काम आप डिक्शनरी खरीदने का प्रोजेक्ट बनाइए। ओके, लिबास, ड्रेस या किसी भी चीज को खरीदने से पहले एक डिक्शनरी लाजिमन खरीदिए, देन ओनली यू विल बिकम अ वंडरफुल टीचर। सो डिक्शनरी में वर्ड्स होते हैं, उर्दू के लगभग 33,000 वर्ड्स हैं, और इंग्लिश के अराउंड 1,28,000 1,30,000 वर्ड्स हैं। ठीक है, अंग्रेजी में वर्ड्स नए नए बन रहे हैं, उर्दू में वर्ड्स नहीं बन रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जितने बच्चे को वर्ड्स सिखाएंगे, स्टोरी पढ़ाने का, स्टोरी बोलने का मकसद ये होता है कि बच्चों को आप वर्ड्स सिखाएं, और वर्ड्स के जरिए बच्चे फिर समझने लगते हैं। जितने वर्ड्स बच्चा सीखेगा उतना उसका नॉलेज एक्सपैंड होगा। सामान्य आम जो टीचर्स हैं, उनके पास हिंदुस्तान में ये देखा गया है कि अंग्रेजी के सिर्फ 500 वर्ड्स होते हैं आउट ऑफ 1,28,000 वर्ड्स। नॉर्मल हमारे और आपके पास सिर्फ 500 वर्ड्स हैं। अगर आप ये 500 से बढ़कर वोकैबुलरी कम से कम 25,000 तक ले जाते हैं तो यू विल बी अ गुड टीचर।
So to increase the vocabulary, you have to have a dictionary with you. तो मैं ये बता रहा था कि अमेरिका में कहानी बोली गई तो दादा ने कहा सिर्फ कहानी बोली जा रही है। टीचर ने कहा कि हम कॉग्निटिव प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं। कॉग्निटिव प्रोसेस यानी बच्चे को एक्टिव लर्नर बना रहे हैं। एक्टिव लर्नर का मतलब ये कि बच्चे के अंदर हम क्रिटिकल थिंकिंग पैदा कर रहे हैं, उसके अंदर हम एनालिसिस करने का तरीका पैदा कर रहे हैं, उस बच्चे के अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी पैदा कर रहे हैं, उस बच्चे के अंदर हम लर्निंग लेवल को बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीजें किसी भी एजुकेशन की बुनियाद है। आज क्या हमारे क्लासरूम में ये काम हो रहा है? हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसको कौन करेंगे? इसको हम करेंगे, टीचर्स करेंगे, और वो टीचर्स करेंगे जो यहां से तरबियत लेकर जा रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि आपको होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन यूज करना है, उसमें आपको विजन देना है, अपना विजन तय करना है, मैनेजमेंट का विजन तय करना है, अपना एम्पावरमेंट करना है, स्कूल का एम्पावरमेंट करना है, और अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए हमको काम करने की जरूरत है। टीचर्स का एक आम एटीट्यूड ये होता है कि हम ये ट्रेनिंग लेने के बाद अब कोशिश ये करते हैं कि किसी अच्छे स्कूल में हमको नौकरी मिल जाए। वी वर्क फॉर मनी, हमारा कमिटमेंट कम होता है। हम चाहते हैं कि एक स्कूल में थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई, एक्सपीरियंस हो गया, इसको दूसरे स्कूल में बार्गेन करने के लिए इस्तेमाल करें। एकेडमिक ईयर खत्म होता है तो हमारी कोशिश ये होती है कि किस तरह एक स्कूल से दूसरे स्कूल में दाखिल हो और बार्गेन करके 500 रुपये ज्यादा कमाए। खुदारा आप इस प्रैक्टिस से जरा सा बचिए, आप कमिटमेंट लेकर चलिए। मैं हिंदू और मुस्लिम टीचरों के दरमियान काम करता हूं। मुस्लिम टीचरों में मैंने कमजोरी ये पाई है कि हमारी बहनें ज्यादातर टीचिंग प्रोफेशन में 2-3 रीजन के साथ आते हैं। एक मेन रीजन ये होता है कि कुछ पैसा कमाया जाए, दूसरा रीजन ये होता है कि अभी शादी नहीं हुई है, शादी तक टाइम पास क्यों करें, पढ़ा ले। ये 2 रीजंस इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद एक तीसरा रीजन होता है जो मैटर ऑफ कंसर्न है, वो ये कि कुछ फैमिली के हालात, शोहर के साथ लड़ाई झगड़ा, अम्मी के घर में है तो चलो कुछ काम कर लें, कुछ इनकम को सप्लीमेंट करें। ये 3 मकासद के अलावा चौथा होता ही नहीं। मैंने जो कहा कि बच्चों को दीन के लिए, आखिरत के लिए तैयार करें, इस दुनिया के लिए तैयार करें, ये हमारा मकसद नहीं होता। आप में अगर कमिटमेंट नहीं आ रहा है तो आप इस प्रोफेशन में मत दाखिल होइए। गुज़िश्ता दिनों 26 जनवरी को जो बेस्ट टीचर अवार्ड्स दिए गए, उनके सिलेक्शन का एक प्रोसेस था। उस सिलेक्शन प्रोसेस में 30,000 टीचरों ने अप्लाई किया था अवार्ड्स के लिए वेरियस कैटेगरीज में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जजेस की जो टीम बनाई थी, 18 जजेस के मेरे पास जितने प्रोफाइल आए उसमें एक मुस्लिम टीचर का भी प्रोफाइल नहीं था, और जितने नॉन मुस्लिम टीचर्स के प्रोफाइल थे वो सारे वंडरफुल और उनके कमिटमेंट लेवल देखने के लायक था। एक खातून जो भरैच की थी, उसकी एक आंख नहीं, उसका एक पैर नहीं, लेकिन वो इतनी डेडिकेटेड टीचर थी कि वो अपने स्कूल में पूरा वक्त गुजारने के बाद जो बच्चा उस दिन स्कूल नहीं आता था उसके घर जाती थी, खैरियत दरियाफ्त करती थी और उस बच्चे को वो पूरा सबक पढ़ाती थी जो उसने उस स्कूल में पढ़ाया है। क्या इतना कमिटमेंट हमारे किसी टीचर में होगा? अभी जैसा कि एडवोकेट साहब ने कहा कि ये नोबलेस्ट प्रोफेशन है, ये जो काम है वो अंबियाई काम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं मुरब्बी बनाकर भेजा गया हूं और मैं अपने आप को टीचर कहलवाना पसंद करता हूं। आज हम
टीचर कहलवाना पहले तो पसंद नहीं करते, और अगर कहलवाना पसंद करते हैं तो एक टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो पूरा हम करने तैयार नहीं है। टीचर महज टीचर नहीं होता, टीचर पेन ड्राइव नहीं बनाता है, टीचर इंसानों की तश्कील करता है, टीचर बच्चे की आखिरत को संवारता है। एक टीचर अपना सब कुछ निचोड़ के एक शख्सियत की तश्कील देता है। क्या हम ये काम अंजाम दे रहे हैं? क्या हम ये काम अंजाम देंगे? ये हमको अपने आप से सवाल करना है। होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन की जो मैंने बात कही, उसमें जो पेडागॉजी होती है, पेडागॉजी के ताल्लुक से मैंने सवालात किए। पेडागॉजी यानी तदरीसी अमल, हाउ यू वुड बी डिलीवरिंग, हाउ यू वुड बी इंगेजिंग चिल्ड्रन। होलिस्टिक अप्रोच में कहा गया कि पेडागॉजी होती है पेडागॉजी ऑफ लव एंड केयर। बच्चों को प्यार और मोहब्बत दिया जाता है, बच्चों को केयर किया जाता है, बच्चों को डांटा नहीं जाता, बच्चों को एक्सक्लूड नहीं किया जाता, बच्चों को समझा जाता है, बच्चों के पोटेंशियल्स के हिसाब से पढ़ाया जाता है, बच्चे का सोशल बैकग्राउंड क्या है उसे देखा जाता है, बच्चा किन मसाइल का शिकार है उससे देखा जाता है। आज हम बच्चों को डिस्काउंट करना सीख गए हैं, अप्रिशिएट नहीं करते। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है जो नोकिया में बहुत बड़ा काम अंजाम दिया। नोकिया का जो ब्लैक, आपने फोन कभी इस्तेमाल किया होगा, कितनों ने इस्तेमाल किया ब्लैक फोन, छोटा सा नोकिया का? जी, उस नोकिया के ब्लैक फोन को बनाने वाला एक साइंटिस्ट 2 साल पहले टीचर के इंतकाल के बाद एक बहुत बड़ा ऑर्फनेज फिनलैंड में खोला। उसको पूछा गया कि हम तो सुनते देखते हैं कि लोग बाप के नाम पे ऑर्फनेज खोलते हैं, माँ के नाम पे ऑर्फनेज खोलते हैं, ये तुमने टीचर के नाम पे ऑर्फनेज खोला, क्या बात है? तो उसने कहा कि मैंने साइंटिस्ट बना, मैं एक बड़ा इंसान बना, मैंने बड़ी दौलत कमाई, ये मेरी टीचर का कर्म है। कैसे? पूछा गया तो उसने कहा कि मैं जब 7th स्टैंडर्ड में था तो मुझे पढ़ने से कम दिलचस्पी और गाने सुनने से ज्यादा दिलचस्पी थी। आई यूज्ड टू लिसन ओनली सॉन्ग्स। मैं फेल हो गया, मां मुझे डांटी, मेरा बाप नहीं था, मां ने कहा कि अब तू क्लासरूम छोड़ दे, पढ़ना छोड़, तुम अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। वो फिर दोबारा स्कूल लाती है। कमाल ये होता है कि अगले साल वो बच्चा, पिछले साल फॉर एग्जाम्पल 25% मार्क्स स्कोर किया तो नेक्स्ट ईयर 35 लेता है और फेल हो जाता है, 40 पे पास। मां फिर डांटती है, कहती है तू 1 साल वेस्ट कर दिया, मैंने कहा था कि स्कूल मत जा, वो तेरी टीचर स्कूल ले गई और तू 35 नंबर लाया 25 नंबर लाने, पिछले बार 25 लाया, इस बार 35 लाया, फेल हो गया। खूब डांटी, बिल्कुल अपसेट था, घर में बैठा हुआ था। टीचर आई 2 मिठाई के डब्बों के साथ, एक मिठाई का डब्बा बच्चे को दी और कहा कि मुबारक, आपका रिजल्ट आ गया, ये मिठाई लीजिए। फिर मां को मिठाई दी, बोली कि बच्चे का रिजल्ट आया, ये मिठाई लो। मां और बेटा दोनों देखते रहे कि ये कैसी टीचर है, मेरा मजाक उड़ा रही है, मैं फेल हो गया हूं और ये मिठाई दे रही है। मां भी यही कहती है कि ये फेल हो गया और ये मिठाई दे रही है। टीचर कहती है सुनिए आप, और ऐसे टीचर बनिए। टीचर कहती है बेटे मुबारक हो, तुम लास्ट टाइम 25 नंबर लिए थे, फेल हो गए, और इस बार तुम्हारे मार्क्स में 10% का इजाफा हुआ है और 35 नंबर लिए हो, अगले साल जरूर पास हो गए। 10 नंबर का इजाफा हुआ है। सी द पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव अप्रोच। टीचर का पॉजिटिव अप्रोच एक बच्चे की जिंदगी बदल देता है। यही बात बेग साहब ने कही, आपका एक एक एटीट्यूड बच्चों की जिंदगी को तब्दील करने वाला है। उस बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है और आपको और हमको नोकिया फोन देता है। अगर उसको यूं ही छोड़ देता तो पता नहीं किस गली में फिरते रहता। तो ऐसे कितने बच्चों को पता नहीं आज टीचर्स
बना रहे हैं और कैसे और कितने बच्चों को पता नहीं टीचर्स बिगाड़ रहे हैं और उनको नालायक बना रहे हैं। अल्लाह ने हर बच्चे को अलग अलग पोटेंशियल्स दिए हैं। मैं जिस प्रोफेसर की बात करता हूं, प्रोफेसर गुरुराज कराजगी, वो भी एक दफा अपने एक स्टूडेंट के पास गए। आखिरी बात, एक लड़की एसएसएलसी में फेल हो गई, वो घर गए, उस लड़की के छोटे घर जाकर देखा उन्होंने कि बड़ी पेंटिंग लगी हुई है, ये एकदम बिल्कुल रियल वाकया है। उन्होंने कहा कि बच्ची के अंदर इतनी आर्टिस्टिक सलाहियत है। उस बच्ची को उसने, गुरुराज कराजगी ने पेंटिंग और आर्ट के स्कूल में दाखिल करवाया और आज वो लड़की एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनकर जापान में है। एक छोटे घराने की लड़की, बेलगाम के एक छोटे देहात की। तो टीचर स्टूडेंट की लाइफ में इतना जबरदस्त रोल अदा कर सकता है, बशर्त ये कि हम अपने इस प्रोफेशन को उस दियानतदारी के साथ अंजाम दें। मैं कह रहा था कि मैंने जिन टीचर्स के प्रोफाइल्स को इवैल्यूएट किया, उसमें मैंने एनॉर्मस कमिटमेंट पाया। हमारे टीचरों के पास कमिटमेंट लेवल कम हो रहा है। हमने तालीम को डिवाइड कर दिया है कि ये काम तो पैसे कमाने के लिए है, मुझे इससे क्या नेकी मिलेगी। नेकी तो उस वक्त मिलेगी जब मेरी तनख्वाह मिलेगी और उस तनख्वाह में से 200 रुपये मैं किसी बेवा को दे दूं। आपको 200 रुपये बेवा को देने से उतना फायदा और उतनी नेकी नहीं मिलेगी जितनी नेकियां आपको एक बच्चे को सिंसियरली पढ़ाने में है, उसकी तरबियत करने में है। इस पर आप ध्यान दीजिए। सारे बच्चे आपके हाथ में अमानत हैं। आज आप जानते हैं कि पेरेंट्स आपके सामने अमानत के तौर पर बच्चों को देते हैं। उनका मुस्तकबिल संवारना आपका काम है। अगर आप उनका मुस्तकबिल बिगाड़ रहे हैं तो कल क़यामत के दिन आपसे जरूर पूछा जाएगा, इस बच्चे के अंदर ये पोटेंशियल्स थे, आपने इसको बिगाड़ दिया। इस पोटेंशियल्स को आपने फुलनेस लेवल पर नहीं नरिश किया, नर्चर किया, ये सवाल आपसे किया जाएगा। इस पर आप गौर करें, क्रिएटिव टीचर बनने की कोशिश करें, कोलैबोरेटिव लर्निंग करें और एक इनकलाब हैदराबाद में लेकर आएं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए और आपको बेहतरीन टीचर बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। With the privilege to introduce our chief guest, Mr. M.J. Akbar, IFS DFO, Government of Telangana, to please deliver address for our graduation ceremony. धरता फाउंडर, चेयरमैन, इंजीनियर जनाब वहीद दाद खान साहब, मौजूद मेहमान जो यहाँ पे स्टेज पे मौजूद है, टीचिंग लर्निंग एकेडमी से जुड़े हुए टीचर्स, ऑफिस बेरर्स, ऑफिशियल्स और यहाँ पे मौजूद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज इस महफिल में यहाँ पे ठहर के यहाँ पे आप लोगों के साथ में कुछ टाइम यहाँ पे बिताने का अल्लाह ताला मौका दिया है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये महफिल बहुत ही अहम, बहुत ही मुतबर्रिक, क्योंकि ये ऐसी महफिल है जहाँ पे इल्म को सीखना और सिखाने की बात होती है। हम सब जानते हैं कि हमारे मज़हब में इल्म को सीखने के ताल्लुक़ से कितनी तरजीह दी गई है। हम सब जानते हैं कि सबसे पहले वही पढ़ो, पढ़ने के ताल्लुक़ से आई है। उसके बाद में इल्म के ताल्लुक़ से कई अहादीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात इतनी तरजीह दी गई इल्म को सीखने और सिखाने में। अनफॉर्चुनेटली
आज़ादी के बाद में हमारे हिंदुस्तान में अगर कई रिपोर्ट्स हैं, स्टडीज़ हैं साइंटिफिक, जिसको सच्चार कमेटी के और कई रिपोर्ट्स हैं, इसके मुताबिक हम इस इल्म में बहुत पीछे हैं। कोई भी कौम की तरक्की अगर होना है बगैर इल्म के पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसे में ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस है, जो आगे आके इस एरिया में जो काम कर रहे हैं, इट्स ए ग्रेट वर्क। ख़ास तौर पे हमारे वहीद तात खान साहब को मैं मुबारकबाद देता हूं इसके लिए। आप लोगों के लिए मसरत का मौका, बिकॉज यू हैव कंप्लीटेड द ट्रेनिंग प्रोग्राम सक्सेसफुली, और आज आपके सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं। मेरे से पहले जो स्पीकर थे, माशाल्लाह, ही इज एन एक्सपर्ट, ही इज एन एक्सपर्ट इन एजुकेशन, ही इज एन एक्सपर्ट इन द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द एजुकेशन, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह, कई एरियाज पे कवर किए हैं वो। पर्टिकुलरली कमिटमेंट के ताल्लुक से, और कमिटमेंट हो तो कितना हम आगे बढ़ सकते हैं, कितने लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उस्ताद को वालिद का दर्जा दिया है, और एक जगह ये कहा है कि वालिद अपने औलाद को बेहतरीन तोहफा ये है कि वो सही इल्म दे और तालीम और तरबियत के बारे में बात करते हैं, सबसे बेहतरीन तोहफा है। ये दो भी हदीस आपसे पर्टिकुलरली लिंक्ड है। और आपका ये जो प्रोफेशन है, अल्लाह ताला ने इतना बड़ा आपके हाथ में नेमत दी है कि आप जिसको भी आप तालीम दे रहे हैं, सही तरबियत दी, सही तालीम दी, और सही काम करने लगे हैं, ये एक सवाब जारिया है आपकी ज़िंदगी में माशाल्लाह। और आप लोग जो आज निकले हैं, एक हलाल रोजी की तलाश के लिए निकले हैं। एक बेहतरीन प्रोफेशन के अलावा हलाल रोजी कमाने के लिए वो दर्जा दिया है अल्लाह ताला, वो इबादत के बाद का, जो फर्ज इबादत है उसके बाद का दर्जा है। अल्हम्दुलिल्लाह इतने नेमतें आपके दिए हैं, बहुत बहुत मुतबरिक मुबारक हो आप लोगों को। जब कमिटमेंट की बात, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल्स दिए हैं आज के हमारे चीफ गेस्ट जनाब सैयद तनवीर साहब। आई वाज रियली इम्प्रेस्ड एंड इट वाज वेरी मोटिवेटिंग। मैंने कहीं पढ़ा है कोई किताब में, वहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं कि 9th क्लास का एक क्लास का एक वाक़या है, 9th क्लास के स्टूडेंट्स का। तो 9th क्लास में वो टीचर बच्चों को एक असाइनमेंट देती है कि आप अगले 25 साल में बड़े होने के बाद में आप क्या बनना चाहते हैं। वो आप एक असाइनमेंट है, वो लिख के लाइए, उसके ऊपर आपके मार्क्स मिलेंगे। ग्रेड्स रहते हैं A to F ग्रेड, बेस्ट जो होता है उसको A ग्रेड, जो लास्ट होता है वो F ग्रेड होता है। तो बच्चे अपना अपना लिख के लाते हैं। ये एक बच्चे की ऐसी कहानी है जो बहुत ही गरीब घर से आता है। उनके वालिद साहब एक रांच में घोड़ों की साफ सफाई का देख रेख का काम करते हैं। रांच के माने जो होते हैं, बहुत बड़ा एक फार्म हाउस होता है जहाँ पे बहुत रईस लोगों का होता है, जिसमें हर किस्म के उसमें यानी जानवर, घोड़े वगैरह सब अम्यूजमेंट्स रहते हैं उसमें। तो वो लड़का अपने वालिद से पूछता है कि मैं क्या लिखूं इसमें। तो वालिद वो लड़के को बताता है कि ये तेरा फ्यूचर है बेटा, तुझे जो बनना है वो लिख दे। तो लड़का अपना फ्यूचर उसमें लिखता है और लेके जाके असाइनमेंट टीचर के सामने रखता है। टीचर सब बच्चों को असाइनमेंट पढ़ती है, सबको ग्रेड्स देती है, अपने A to F ग्रेड्स। ये बच्चे का जब असाइनमेंट पढ़ती है तो बच्चे को बुलाती है। तो ये बच्चा ये लिखता है कि मैं बड़ा होने के बाद में एक बड़े बड़े रांच का मैं ओनर बनूंगा।
और कई मेरे रांच होंगे, उसमें हज़ारों जानवर होंगे, हज़ारों किस्म के बड़े डिफरेंट टाइप्स ऑफ यानी उसमें फैसिलिटीज होंगे, तो बड़ी डिटेल लिखता है वो। जो टीचर बुला के बोलती है कि आपका बैकग्राउंड देखिए, पहले आप किस घराने से आते हैं, किस फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। दिस इज अननेचुरल, इसमें कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है, और यू प्लीज चेंज दिस, क्योंकि अगर ये आप मेरे को ऐसे सबमिट करेंगे, मैं आपको लास्ट ग्रेड देना पड़ता है, F ग्रेड। तो आप अपना फ्यूचर चेंज कीजिए, जो बनना है, क्योंकि प्रैक्टिकल जो है वो बन के लाइए, सो दैट आई विल कंसिडर यू ए डिफरेंट ग्रेड, बेहतर ग्रेड दे सकते हैं। अगेन ही गोज टू हिज फादर, टीचर ने ऐसा कहा है, क्या करना है? बोले कि आई विल नॉट इंटरफियर इनटू दिस, दिस इज योर फ्यूचर, ये आपका मुस्तकबिल है, इट्स अप टू यू। तो बच्चा बहुत 1-2 दिन सोचने के बाद में फिर टीचर के पास जाके वही असाइनमेंट लेके जाता है। ही विल नॉट चेंज द असाइनमेंट, और ये बताता है टीचर से, यू कीप योर ग्रेड, F ग्रेड देना चाहती है, क्या ग्रेड देना चाहिए, यू कीप योर ग्रेड विथ यू, आई वांट टू कीप माई ड्रीम विथ मी, मैं अपना मुस्तकबिल चेंज नहीं करना चाहता हूं। वाकया हो गया, 20-25 साल का अरसा हो गया, वही स्कूल के वही टीचर बच्चों को एक्सकर्शन फील्ड ट्रिप लेके जाते हैं 20-25 साल के बाद में, सेम 9th क्लास के स्टूडेंट को। तो जब एक बड़े रांच पे लेके जाते हैं बच्चों को बताने के लिए, एक्सकर्शन पे, स्टडी ट्रिप पे, तो वहाँ पे जाने के बाद में वो जो वहाँ के जो रांच के ओनर है, वो आके टीचर को विश करते हैं और वहाँ बताते हैं कि ये मैं वही लड़का हूँ जो यही 9th क्लास में आपने मेरे ड्रीम को आप छीन लिए थे, छीनना चाह रहे थे, आई वांट टू कीप दैट, मेरा मुस्तकबिल मैं अपने पास रखना चाह रहा था, एंड आज मैं रांच का ओनर बन गया हूँ। इसमें 2 मॉरल्स हैं यहाँ पे जो हम बैठे हैं आप लोगों के लिए। एक तो ये है, जहाँ पे हमारे चीफ गेस्ट साहब बताए थे कि बी पॉजिटिव, डोंट डिस, उसीलिए आप लोग अपना घर छोड़ के बाहर निकले हैं, घर छोड़ के बाहर आके हम मेहनत कर रहे हैं। जो आप बनना चाहते हैं, हमारे चीफ गेस्ट ने जो बताया है कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में, कंटिन्यूस स्ट्रगलिंग के बारे में, तो उसको आप कायम थाम के रखिए। इंशाल्लाह जो भी आप बनना चाहें, जो आपके दिल में है, बिल्कुल उसको साफ सुथरा लिख के रहिए, उस पर मेहनत करिए, कंटिन्यूसली एजुकेशन पे कायम रखिए। अभी वहीद दाद खान साहब से बात हो रही थी, बड़ी मसरत और खुशी हुई सुन के कि कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में भी आपको क्लासेस हैं, ट्रेनिंग ली गई है। क्योंकि एक कहावत ये है, वन शुड नॉट स्टॉप लर्निंग इन हिज लाइफ, लर्निंग शुड बी ए कंटिन्यूस प्रोसेस। द डे यू स्टॉप लर्निंग, दैट डे यू हैव स्टॉप ग्रोइंग। जिस दिन आपने सीखना छोड़ दिया है, उस दिन आपने आगे बढ़ना भी छोड़ दिया है, लर्निंग प्रोसेस। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ्रॉम योर बर्थ टिल वी आर अलाइव ऑन दिस अर्थ, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें सही रास्ते पे, सही इल्म हासिल करने के लिए सही रास्ते पे हमें रख, और हमारी मेहनत में काफ़ी बरकत दे, हमारी मंजिल को हासिल करने में हमारी मदद फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जज़ाकल्लाहु खैर। We acknowledge the talent of our brilliant teachers. The fruit of hard work and discipline will be finally be reaped. Now it's time of our TLA graduates to facilitate our certificates. So by this, I would like to welcome Mr. Abdul Muqtadir to please come on the stage and facilitate our TLA graduates with their certificates. And I want Ms. Fauzia to assist in the distribution of certificates. सुल्तानी की गुम्मत पर नहीं तेरा नशेमन खसरे सुल्तानी की गुम्मत पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। It gives me immense pleasure to invite all the dignitaries and trainers and trainees and all. Welcome to all. Very welcome. It is my pleasure for chief guest Mr. Javed sir.
Sayyid Tanveer Ahmed sir, Chief Guest, Executive Director of Brainy Star International Montessori School at Bangalore. To distribute the certificates, please I invite you on the stage. Come forward, sir. Thank you, sir. The following students, please come forward to receive your certificates of 12th batch. 12 batch. First, Yasmin Sheikh. Please come here, please, quickly. Yasmin Sheikh. And next, Afrin Sheikh. Yasmin Sheikh. Photos. Anjum, please photos here, there. Puchige. Come here in the center, please. Afrin Sheikh also. Kutubun Nisa. Faizul Nisa, please come on the line there, please. Okay, ma'am. Afrin Sheikh finish? Okay. Kutubun Nisa finish? Kutubun Nisa. Faizul Nisa. Faizul Nisa. Faizul Nisa, please. Faizul Nisa. Yes, sir. Okay. Fahim. Farheen Tabassum. Farheen Tabassum. Farheen Tabassum. Kulsumun Nisa. Kulsumun Nisa. Kulsumun Nisa, she's coming? Where is she? She's here, no? Absent? Okay. And Sakia Shaheen, please come quickly. Sakia Shaheen. Okay, thank you very much. Thank you, Mr. Tanveer sir. You have a seat, please. Now we can announce Mr. Aisha Khan. And Sarita Shukla. Oh, okay, she's coming. Okay, M. Srilata and Sarita Shukla, please come. Bolo. Navida Farheen, Navida Farheen. please come on the stage and collect your certificate. Navida Farheen. Sabinas. Sabinas. She's coming? Sabinas. Yes, sir, coming. Okay. Come from here. R. Purnima. And she didn't come, huh? Kubra Dat Khan. Kubra Dat Khan. Okay, she's not coming. Asma Shabir. Asma Shabir, please come quickly. Please come quickly. She's coming? Okay, okay. Asma Shabir. Yes, sir. 13 batch. Now, thank you very much, Mr. M.J. Akbar Sahab. Have a seat. Mr. Abdul Jabbar Siddiqui, please come and give the certificate to the students. Abdul Jabbar Siddiqui, please. Women Welfare Foundation Secretary. Mazhar Tabassum, please. Mazhar Tabassum from 13th batch. Mazhar Tabassum. Mazhar Tabassum. Okay, thank you. Mazhar Tabassum. Arifa Afrin from 13th batch. Arifa Afrin, she's coming? Yes, sir. Arifa Afrin. Fatima Begum, 13th batch. Fatima Begum. Fatima Begum. Oh, very good. Educational Academy in Balanguda. Fahmida Anjum, 13th batch. Fahmida Anjum. Fahmida Anjum, it is women corrected. Fahmida, Bibi 13th batch. Fatima. Bibi Fatima. Next, Bibi Fatima. Bibi Fatima. Ari Bibi Fatima. Wait, wait. इनको पहले किसी बैठने के लिए बोलना उनको फिर होगा. Thank you. And now you can say. I would like to Wahidat Khan sir to come and give the certificates to students. Mr. Wahidat Khan, please come on. Uzma Ahmadi, please come on the stage. Uzma Ahmadi. Uzma Ahmadi
she is teaching in Yakhra Mission, Nawab Sahib Kunda, Yakhra Mission High School. Farheen Fatima. Next, Farheen Fatima. Be ready, girls, please. Farheen Fatima. Nazira Unisa. Nazira Unisa. Farheen Fatima. Okay, okay, thank you. Nazira Unisa. Yes, No, no, very good. Okay, okay, okay. Oh, okay, okay, okay. Who? Nazira Unisa. Arshia Begum. Arshia Begum. 13 batch. Arshia Begum. Asfiya Banu. 13th batch. Asfiya Bushra Banu. Fatima. Asfiya Banu हो गए? हो गए? बुशरा फातिमा? बुशरा? जोर से बोलो. Thank you, sir. Thank you so much. Mr. Anwar Khan, sir, to give the certificate to the students. Please, sir, come forward and give the certificates. Mr. Anwar Khan, executive member for the TLA and also for the member for secretary for the Standard High School Aisha and also Fatima. for the IATA president of Jamaat Islami. Tabassum Begum, 13 batch. Tayyaba Farheen. नहीं नहीं ये है ना? Yes, sir. Tayyaba Farheen. हाँ तय करिए. जरा जोर से बोलो आवाज. Tayyaba Farheen, please come. Salma Butul. सलमा बुतुल. सलमा बुतुल. Just wait, wait, हो जाने दो पूरा. जोर से बोलोगे ना? बाद में जोर से बोलना. चलो हो जाने. Take a Thank you, photo. sir. Thank you so Take a much. photo. Don't talk in it. Just you. Thank you, yeah. sir. Thank you very much, sir. Yeah, yeah. Thank you, Anand. Thank you, sir. Thank you, sir. Now I would like to call Mr. Khalid Beg, sir, to come forward and give the certificate to the students. Mr. Khalid Beg, sir, is the TLA trainer. Mr. Khalid Beg, TLA trainer, and high school. Sayyid Amdul Masood, 13th batch. कैसे बोलो आपने? Afrin Anjum, 13th batch. PM? C Bhavya. Bhavya. Where is C Bhavya? She's coming.